Bismillahirrahmanirrahim. So dear students, इस वीडियो में we'll see the basic glasswares, basic equipments which we use in the chemistry laboratory. So basically, because of the COVID pandemic situation, we could not get the students physically in the lab. So I thought to start a series of 2-3 videos where we'll be familiar with some basic equipments जो usually हम graduate, undergraduate and postgraduate chemistry में देखते हैं lab में. So you can see here group of glasswares and some basic equipments in our first today's video class. So let us start with the equipment number 1. So in today's video we'll be talking about some 15 or maybe 10-12 equipments. So we'll start with the number 1. So let us go. So basically यहाँ देख सकते हैं this one. So I'll bring this equipment here and then we'll do the minor discussion also. ये जो setup आप देख रहे हैं इस glassware को. Why I am showing this because जब exams होते हैं, even जो practical exams जो आपका external examiner होता है, then he sometimes asks you to name the glassware, and the student even doesn't know. Surprisingly, even some of the PG courses also somewhere I have seen that students even are not familiar with the glasswares. Okay, so ये जो आपको setup दिख रहा है, you see this flat bottom and then long neck. ठीक, this is basically called as the volumetric flask. So number 1. अब यहाँ देख सकते हो ये इसका अदर साइज है और इस पे लिखा होता है volumetric flask पे यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना है. Now you can see here it's 100 ml and then the ये जो लिखा है यहाँ पे it means कि कौन सी कंपनी का है, which quality. अच्छा, ये जो 100 ml measurement है, it has been taken at 27 degree because we know the expansion of the glasses, expansion of the materials, so it varies with the temperature. So it has been recorded at 27 degrees क्योंकि usually जो हमारे temperature होता है that's the same 25, 27, 30. So at this at the room temperature around 25, 27, so the volume has been recorded as 100. So ये जो आपका volumetric flask है, this one, it's इसके अंदर जब आप कोई सा भी solution भरेंगे, even any solvent, so you measure this with the accuracy. इसकी accuracy बहुत अच्छी होती है. यहाँ पे इसमें आप mark भी देख सकते हो, ये देख सकते हो, there are some marks. ये जो marks है यहाँ तक basically इसका ये जो है 100 ml आता है. So accordingly ये जो आपका बड़ा size वाला है, you can see it's reading, it's at 27 degree 250 ml. So it's 250 ml. We have 1000 ml also, 500 ml also. We can have 10 ml also. There are 5 depending on आप किस तरह का experiment करते हैं. Usually in the research we have to be more accurate. So वहाँ पे then we choose हम वो वाला volumetric flask choose करते हैं so that we'll get results better. अच्छा, यहाँ पे एक important चीज भी है कि written borosilicate. So borosilicate is known to be one of the accurate, strong companies. So that gives you very good glasswares. It's fine. So this is your volumetric flask. So volumetric flask में अब यहाँ से इसको आप खोल सकते हैं. This is your stopper. अब cork या cork. So you can open this from here. ठीक. कादिर, 1 second. Yes. इसको खोलो. इसका इन्हें खोलो. Okay, so let's open this. थोड़ा सा ये इसमें it's fitted tightly here. Okay. So I'll bring in a different one. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको हमने नया कॉर्क यूज़ किया है और ये स्टॉपर. तो जब हम स्टॉपर ओपन कर लेते हो तो यहाँ से हम इसको सॉल्वेंट भर लेते हैं. इट्स अ लॉन्ग नेक, आप इसको यहाँ देख सकते हो. सो फिर जो भी आपके वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशंस होते हैं, चाहे आपका पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन हो या एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो, उसके लिए जो सॉल्यूशंस बनाते हैं 1 नॉर्मल 2 नॉर्मल जो भी बनाना हो एक्सपेरिमेंट में, सो वी यूज दीज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क्स देयर. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So volumetric flask is one of the important components of the chemistry lab. So this is our today's glassware number 1. ठीक है. अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो और एक ग्लासवेयर, लेट अस ब्रिंग इट हियर, दिस वन.
वेरी कॉमन, आपने देखा भी होगा, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट अगेन. दिस इज योर बीकर. दिस, तो ये जो बीकर होता है, यू कैन डू मेनी थिंग्स इन द बीकर. यू यूज इट इन मेनी एक्सपेरिमेंट्स. सो यू पुट द सॉल्वेंट हियर. आप हीट भी कर सकते हो, और आप इसमें कोई कंपाउंड लेके यू कैन कीप इट इन द फ्रिज आल्सो, और फॉर डिकैनिटेशन आल्सो यू कैन यूज दिस. सो देयर इज मेनी फंक्शन यू कैन सी. इसमें अपना अपना जो है, यू कैन सी द स्केल हियर. सो डिपेंडिंग ऑन आपको सॉल्वेंट कितना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल दिस इज 500 ml बीकर. इस पर आप 500 ml तक रख सकते हो. लाइकली इसकी भी साइजेस डिफरेंट होते हैं. 50 ml, 100 ml, 250 ml, 1000 ml. So there are many beakers. It's very common. So this equipment is called your beaker. Fine. Okay. उसके बाद में यहाँ पे एक चलते इस इक्विपमेंट की तरफ. छोटा सा ग्लास वेयर है. दिस वन वेरी कॉमन. दिस इज योर टेस्ट ट्यूब. ये जो है आप देख सकते हो, सिलेंड्रिकल ट्यूब. दिस इज योर टेस्ट ट्यूब. ठीक है. And then you do many experiments here. Particularly जो आपको डिटेक्शन, केमिकल एनालिसिस, कोई चीज़ डिटेक्ट करना, कोई कलर बिहेवियर देखना किसी भी सैंपल का. We take that minor sample here and then we try to check it. So this is your beaker. Fine. Sorry, slip out of the tongue. So this is your टेस्ट ट्यूब. सो टेस्ट ट्यूब्स के भी डिफरेंट साइजेस होते हैं. ठीक. सो अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन सा टेस्ट ट्यूब चाहिए. सो देन यू कीप इट ऑन द स्टैंड. दिस जो स्टैंड होता है, क्योंकि आप इसको आप रख नहीं सकते लैब में समहाउ. सो यू प्रॉपरली कीप इट हियर इन द स्टैंड कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब स्टैंड. और देयर इज वन वे आल्सो. अगर आपने क्लीन किया इसको, दो चीज़ इसके रखने की है. इफ़ यू हैव फिल्ड समथिंग हियर, देन दिस इज द वे टू कीप इट इन द टेस्ट ट्यूब स्टैंड. एंड देन इफ यू हैव clean this glass, अगर आपने इसको साफ किया, then you can keep it on this side, on this side. So this is your test tube and test tube stand. This is a rubber stand. You can have tin stand also, so no issue. Then we have this one more glassware. Now this guy has given me this is rubber type, लेकिन we mostly use glass type. इसमें cleaning का issue आ जाता है. When it use it, जब आप rubber type use कर लेते हो, ये equipment called as slender. ठीक. सो रबर टाइप में क्या होता है कि आफ्टर यूजिंग इट फॉर 4, 6, 7 टाइम्स, अगर आपने एसिड यूज किया और एनी अदर केमिकल, सो नो, इसकी कंटामिनेशन बहुत आ जाती है. सो दैट्स व्हाई वी यूज ग्लास टाइप. क्योंकि ग्लास वेयर के केस में क्या होता है, इफ द मटेरियल इज ग्लास मेड अप ऑफ अ ग्लास, सो वी कैन क्लीन इट इजिली, वी कैन ड्राई इट इजिली. ठीक. सो दिस इज योर मेजरिंग सिलेंडर. सो आपको कितना वॉल्यूम मेजर करना है किसी सॉल्वेंट का या वाटर का, सो यू मेजर दिस विद द हेल्प ऑफ दिस. ठीक है. दिस इज योर मेजरिंग सिलेंडर. आप इसमें देख सकते हैं, इसमें भी स्केल है यहाँ पे. ठीक. सो यू कैन मेजर कि आपको जितना भी इसमें भरना हो, तो यू कैन फिल दिस, एंड दिस इज वायर यू फिल दिस सिलेंडर. दिस इज योर मेजरिंग सिलेंडर. ठीक. नाउ इसके बाद लैब में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप किसी भी सोल्यूशन, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपके पास है, यू वांट टू हीट योर सॉल्वेंट, यू वांट टू हीट योर रिएक्शन, और यू वांट टू सप्लाई एनर्जी टू योर कंटेंट. ठीक है. लेट अस से आप ये जो आपका बीकर है, इसमें कुछ सॉल्वेंट रखा हुआ है, यू वांट टू हीट दिस. सो व्हाट वी रिक्वायर, वी नीड फॉर दैट हीटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टैंड चाहिए उसके लिए. सो मोस्ट कॉमनली वी यूज दिस ट्राइपॉड स्टैंड, यूजुअली जो यूजी एंड पीजी लैब्स. सो दिस इज योर ट्राइपॉड स्टैंड, हैज 3 लेग्स. ठीक. दिस इज योर ट्राइपॉड स्टैंड. फिर इसके ऊपर हम क्या रख लेते हैं, देन बिफोर वी हीट दिस, we don't prefer to use this directly to heat this, क्योंकि you can crack the glassware and then other issues also. So we use this type of a mesh in the lab. Please remember this is called wire gauze. ठीक है. So wire gauze में यहाँ पे होता है एक filter paper. So we keep it here. इससे क्या होता है, जो ब्रेकेज ग्लासवेयर का हो वो प्रिवेंट हो जाता है. सो देन यू कैन इजीली कीप द कंटेंट्स हियर. आप ग्लासवेयर को यहाँ पे रख सकते हो, जो भी ग्लासवेयर हो. आई एम शोइंग इट हियर बीकर. नाउ एज फार द हीटिंग इज कंसर्न, वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ हीटिंग अरेंजमेंट्स इन द लैब, लेकिन नाउअडेज मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं, दैट इज दिस टाइप ऑफ सेटअप. प्लीज लुक दिस. दिस इज योर हीटिंग सेटअप. इट्स कॉल्ड एज अ बंजन बर्नर. सो इट्स कॉल्ड एज अ बंजन बर्नर. इसको हम इसके नीचे रख लेते हैं, देन वी कैन हीट दिस. ठीक. अब बंजन बर्नर में आपकी ये लाइन भी देख रहे हो, इट्स बेसिकली अ गैस लाइन. ठीक. सो वी हैव द गैस सेटअप. लेट मी टेक यू टू दिस. यहाँ देख सकते हो, दिस इज योर रेड गैस पाइप.
ठीक है. So then you can control this and then you can burn this. So this is your Bunsen burner. We use spirit lamp also and there are other things also. So here we use this Bunsen burner. ठीक. Now उसके बाद में एक glassware यूज कर लेते हैं लैब में. this type of glassware. So this is your wash glass. Remember this. तो वॉश ग्लास में हम समटाइम्स कोई चीज़ होती है वो हम इसमें किसी भी बीकर में हो या किसी भी वेसल में हो या रिएक्शन वेसल में हो, तो देन वी समटाइम्स टेस्ट इट हियर और वी कीप इट हियर. समटाइम्स वी ड्राई आल्सो द कंटेंट्स. दिस इज योर वॉश ग्लास. ठीक है. अभी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हम बनाएंगे नहीं क्योंकि व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट देन ऑटोमेटिकली वी अंडरस्टैंड द यूज ऑफ पर्टिकुलर ग्लासवेयर. ओके. उसके बाद अगर हमें कोई भी लिक्विड उठाना हो, वाटर उठाना हो, उसका कुछ मेजर अमाउंट उठाना हो, फिर किसी में डालना हो, देन वी यूज दिस सेटअप कॉल्ड एज ड्रॉपर. तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर से ये रबर टाइप. सो व्हेन वी कंप्रेस दिस देन वी कैन सक द लिक्विड. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव लिक्विड हियर वी विल पुट कीप आवर this long tube called as dropper inside and then you compress your hand, it will suck the liquid then release your hand. Then जिसमें हमें उसको डालना हो then we compress it again. So this is used for taking the liquid from one beaker or from one flask or from somewhere and then drop it somewhere else. ठीक है. Or you can use this for the acids also depending on or solvents also. Then droppers के बहुत सारे types होते हैं, smaller types and larger types. So this is your dropper. ठीक है. So this setup. The droppers में एक setup होता है called as the pipette. So pipette I will not be discussing here. उसका भी same function होता है, that we will see in the next class. Okay. उसके बाद में let us say हमारे पास ये this is your we discussed this setup cylindrical setup called test tube. अगर हम इस टेस्ट ट्यूब को हीट करना हो, मान लो इसमें हमने कुछ कंटेंट रखा है, कोई सॉल्वेंट रखा है, सो वांट टू हीट दिस. सो एंड देन वी वांट टू होल्ड दिस आल्सो. नाउ वी कैन नॉट डू इट बाय हैंड क्योंकि इट विल हीट अप एंड देन इट कैन डैमेज द हैंड. सो व्हाट विल डू, उसके लिए एक सेटअप होता है कॉल्ड एज द टेस्ट ट्यूब होल्डर. सो दिस इज योर टेस्ट ट्यूब होल्डर. दिस वन लेट मी फर्स्ट राइट. ये आप देख लीजिए, दिस इज योर टेस्ट ट्यूब होल्डर. So what we do, we can open this from here. This is lock. You can open the lock. फिर आप इसमें टेस्ट ट्यूब को रख सकते हो. Let me arrange this first. You can check it. So now look at here. So I have fixed it. This is the way how to fix it. इससे आप क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो इसको. Now you can easily hold it in the hand. So this is your test tube holder. So there is one more also similar type of setup we use in the lab. Similar type that's called as the tong. तो ये जो setup है, ये one this is called as the tong. तो जो भी टेक्निकल लैब्स होती है, एनालिटिकल लैब्स होती है, इन हॉस्पिटल्स में ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, इधर योर टेस्ट ट्यूब होल्डर और दिस टोंग. सो टोंग का भी सिमिलर फंक्शन है. अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी चीज़ इसको हम हीट करना चाहते हैं, देन सो वी कैन लिफ्ट दैट विद द हेल्प ऑफ टोंग. फॉर एग्जांपल आई विल लिफ्ट दिस थिंग, आई विल नॉट डिस्कस इट, सो आई कैन लिफ्ट इट एंड देन आई कैन हीट दिस, देन आई कैन कीप इट समवेयर. सो टोंग इज यूज्ड टू लिफ्ट दोज हीटेड पार्ट्स. जो भी आपका चीज़ उसको आप हीट करना चाहती है, सो वी कैन होल्ड दैट विद द हेल्प ऑफ टोंग. ठीक है. So these were the basic things. इसके अलावा जो एक important चीज़ है, that's your rod, glass rod. So this is your glass rod. Just see this. So glass rod से you can stir the contents. For example, आपने एक beaker heat पे रखा है, then you want to mix it, or without heating also, then you stir this vigorously or you whatever you want with a slowly. तो आप स्टायर करके कंटेंट्स को मिक्स कर सकते हो. दिस इज द वे यू स्टायर इट विद द हेल्प ऑफ दिस रॉड. सो दिस इज योर ग्लास रॉड. सो लॉन्ग रॉड has different sizes. So these are the basic equipments we use in the lab. This is the first setup of our basic equipments, basic glasswares. So in the next video we'll try to gather the ones which are जो थोड़े से इससे advanced हैं. So those I will cover up at least 2-3 video lectures will try to arrange so that at least students will be familiar. जो आपका first semester होता है usually entrance in the colleges, so at least a student gets familiar with the
these equipments. So anyway, so I have tried to arrange it. I hope at least you will be familiar and remember this glasswares. Try to remember at least their names and some जो आप उनका मेजर यूज़ है, किसके लिए यूज़ करते हैं. So that will be more than enough at this level. So thank you. So if you have any questions, so you, कोई भी confusion or कोई भी questions, you can write down. So thank you. This is all for today.